अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। फेस्टिविटीज का मजा तो मोहल्लों में ही आता है। मोहल्लों में तो लड़ाई झगड़ा भी फेस्टिवल बन जाता है। चाहे क्रिकेट हो या कोई भी मेगा इवेंट, जो गॉसिप मोहल्ले के चौक चौराहों में सुनने को मिलती है ना, वो गॉसिप तो टीवी पे भी सुनने को नहीं मिलती। तेजी से इंफॉर्मेशन पहुंचाने में 5G आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मोहल्ला ही है। देखते हैं कि आज मोहल्ला मस्तियां में क्या हो रहा है। ये लूडो की गेम चल रही है? नहीं बेटे, PSL। अच्छा, लूडो का PSL। 10 की गेम लगी बेटे। ले 10। ये लूडो में भी पैसे कमाते हैं आप? हाँ, रात ਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ। कैसे? ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। और दीवाना साहब खाली लूडो ही खेडी जाते, कुछ खान पीन भी करया करो। ओ, ना। नए दुकानदार आए हैं यहाँ पे। पहले तो ये शॉप किसी और के पास थी। ये मेरे बहनोई दी दुकान सी। ओ अच्छा अच्छा। वो ना मैनू खर्चा नहीं देंदा, फिर तुहानू पता रोटी मैं ही ले आंदा सी। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਚੂਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। मिस्टर बाबर, आपके पास ना हर दफा एक ही कोई क्लाइंट आता है, वो भी आप फंसा के लेके आते हैं। आप ये कारोबार चला कैसे रहे हैं? ਉਹ ਮੈਮ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। जिस तरह का क्लाइंट आपकी कुर्सी पे बैठा, इसने देना तो कुछ नहीं है आपको। ਇਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਆਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆਗੇ। ਦਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਓਏ। ਹੈਲੋ ਚੱਠੂ ਵਟਿਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜਵਈਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵੇ। तो काउंसलर साहब खुद कहाँ गए हैं? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਰ ਬਰੀਕਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬੇਟੇ ਓਏ ਖਿਆਲ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੈਂਸਰ ਪਵਾਇਆ। ਅੱਜ वालेकुम सलाम। ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਰੰਦਾ। ਬਾਤ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਰੰਦੇ ਜਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦ ਰੰਦੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਆਇਓ। आप अब इस मोहल्ले में शिफ्ट हो गए? ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਹੈ। ये तो काउंसलर का घर है। ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਹੈ। ओ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਏ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਟੀਏ, ਸਿੱਧੀ ਆਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ, ਪੁੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ। और इस बात पे घर देके चला गया? ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੂਏ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੂਏ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਆ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि पहले इस मोहल्ले में इनको देखा नहीं। कहाँ शिफ्ट हुए आप? ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ओ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। और वो कहाँ चली गई है? ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਹਾੜੀ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਖਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰਦੀ ਫੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ। ਬੇਟੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉੱਥੇ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਸਨ। ਓਏ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਰੰਦੇ ਦੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਲੱਤ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੰਦਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੰਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦਾ। ਰੰਦੇ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। लो ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਓਏ ਲੱਤ ਥੱਲੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਾ। देखिए मत लड़े प्लीज। ਗਜ਼ਲ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਓ, ਰੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। जी अच्छा अब्बू जी। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ अब्बू जी ਗਲਾਸ पानी का गिलास। ਦਿਓ ਬੇਟੇ ਦਿਓ। रंदा जी क्या हुआ, इतना शोर क्यों डाला हुआ है आपने? ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਵਈਏ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵਈਆ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਕਿ ਮੱਛੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੈ ਬੇਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਬੇਟੇ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਟੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। रंदा जी आप बहुत अच्छे हैं वैसे। ਅਪਦੀ जी जी। ਪੁੱਛ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अब मैं क्या अपना की खाओ पियोगे? करती क्या है आप गजल? मैं कुछ भी नहीं, बस घर में सारा दिन खाना पकाना, फिर टीवी देख लेती हूँ, ड्रामे देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। बेवा होएगी तो सिलाई मशीन मिलेगी इन्हू वेखी। अब्बा जी जी बेटा। मैंने दुपट्टा पीको कराने देना था, आके ले जाएं जरा। हाँ बेटे क्यों नहीं और पीको मोड़ तो होना जी उतों करा ला। अच्छा
लो भी मैं आया जरा हैं ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰੇ ਪੀਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ। ओ बस बेटे बस Head over लड़ाई झगड़ा नहीं। heels. ओके रब रख ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ? 500 रुपया जनाब। जब से आपकी कुर्सी ऑक्यूपाई करके बैठे हैं ये। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਉਹ ਕੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ 500 ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 500 ਪੂਰੇ ਭੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ। अब बकवास बंद कर ओए। शुक्र करो आज आपकी शॉप से चुप करके गुजर गया है। हाँ जी ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। और बस बेटे मैं गया हूं दुपट्टा लेके अच्छा, तो अच्छा, तेन पता है बिजली तंग कर दी है घंटे घंटे तक जाती है ਵਿੱਕੀ ਮਫਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। अरे ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਐਸੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਚ ਆਏ। और जिंदा रहें ਖੈਰ ਤੇ ਆਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? बस वो मेरा ना एक मेहमान आ रहा है मिलन ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ 100 ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ? मैं उन्होंने टाइम दिता मैं क्या आ जा हाँ। इत्थे ही आ जाए बिठा लिए ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਵੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। अच्छा, ये बैठक- ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਏ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? एक मेहमान है बस ये बैठक गेस्ट रूम के तौर पे भी इस्तेमाल ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਪੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। और रंधे बैठे ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। अंकल जी मेरे साथ क्या हो रहा? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अंकल जी मैं वापस चला जाऊंगा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? और रंधे बैठे हुई तो मेहमान ने अपने ਓਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। हाँ हाँ आओ बेटे ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਖੌਲ पे करने सही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हद हो गई है बैठो बेटे ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। यार जूस लेके आओ जूस ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜੇ? हद हो गई है यार मेहमान ने अपने ਲਓ ਜੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਯਾਰ। वो तो स्टाइल इस तरह है ऐसी कोई गल नहीं ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ? ये मेरे मेहमान ने ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। इस तरह की गल नहीं असल च ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਪੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? मेरे बड़े अजीज मेहमान ने ਅੱਛਾ 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 इजाज बेटा जूस पियोगे ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂ ਜੂਸ ਪਿਆਓ। ਛੱਡੂ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਬਸ ਮੋਟੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਖਿਦਮਤ ਪੁੱਛੋ। इजाज बेटे कोई बात करो इनसे ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਹੈ हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? नाप के कपड़े सीते ने ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਰੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। मैं क्या अंकल घर चले बहुत हो गया टाइम लेट। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ। बेटे घर च जगह थोड़ी है मैं क्या इतने बैठ के गपशप कर लेने ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਫਿਰੇਗਾ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧ ਪੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। यार ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲ ਦੀ ਆਦਤ रंदा जी केबल के लिए किसको भेजा था? अभी तक टीवी पे दाने दाने आ रहे हैं। इधर ते देखो गजल इजाज आया है इजाज ਇਜਾਜ਼ ਚੋਂ ਬੋ ਆਣ ਡਈ ਹੈ। दीवाना साहब की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹੋ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਹੈ मैं एक प्यो हाँ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और मैं अपनी धी दे बारे अच्छा फैसला सोचा है ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। हाँ, रंदा बेटे गल है वे कि मैं ने प्यो ने वादा किया सी ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਦਫਨਾਓਗੇ? नहीं नहीं इजाज बेटे दा ते गजल दा असी रिश्ता करना चाहते हैं मैं अपनी गजल इनू देना चाहना ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਹੀਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ओह जदों छोटा जिहा सी मैं उदों ही फैसला कर लिया सी ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਝਾੜੂ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ
ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸ ਓਏ ਦੱਸ ਰੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਰੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ ਰੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੀ ਆ ਬਸ ਓਏ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਰੰਦਾ ਓਏ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਇਜਾਜ਼ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ चंदा जी आप ना होते तो फिर मैं क्या करती। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ चंदा जी केबल आ गई। ਆ ਗਈ ਵੇਖੋ ਆਏ ਆਡਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ देखो ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ बड़ा आपने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से उसे बचा लिया आपने। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ क्या बात है ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ वाला है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ अब साहब मैं पहुंच गया हूँ। ये अरशद रजा साहब कौन है? आते रहो जनाब अस्सलाम वालेकुम जी जमाल साहब मिल गए, मैं बात करके फिर बताता हूँ। थैंक यू। बैठो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है? रजा साहब क्या हाल है? हाँ ठीक है मैंने बड़ा नाम सुना था तो जमाल साहब ने आपकी तरफ भेजा। मेरा एक मसला है। अच्छा मसले हल करने दे बैठे वीना जी देखो ना ए नी खिदमत खलक क्या मसला लेके आए हैं आप? वीना जी आप जैसे जानती हैं हमारे मुल्क में कब्जे हैं, 2 नंबरियां, बंदा इसमें फंस जाता है। अच्छा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बिजनेस संभालूं या फिर ये कब्जे छुड़ाता कोई हूं। कब्जा छुड़वाने ये आए? बड़ा पाकिस्तान जिन्हें भैड़ा धंधा शुरू है बेचारे बाहर दे मुल्कां लोकी मेहनत कर करके ना सही बात है। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ सही बात है। ਅਸਿਆਤੀ ਨਹੀਂ आप कब्जे भी छुड़वाते हैं? नहीं मैं हकदार ਨੂੰ ਦਾ हक दवाना नहीं मैंने वीना जी बड़ा नाम सुना है इनका रोब एक दबदबा है। जिस काम में मैंने सुना है हाथ डालते हैं वो पूरा हो जाता है। ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ काम ये है कि एक घर खाली करवाना है। ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਘਰ ਖਾਲੀ बहुत अच्छे रद्दा साहब, ਦੱਸੋ बड़ी आस उम्मीद लेके आया हूँ, वरना मैं केस भी कर सकता था उस पे। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में घी सीधी उंगली से निकलता नहीं। मेरा ख्याल है कि ये जो आप छोटा छोटा बता के करना चाह रहे हैं ना, आप पैसे कम करवाना चाह रहे हैं। नहीं, बात पैसों की नहीं है। पैसे तो पानी की तरह बहाए मैंने सारी जिंदगी, और पैसे की परवाह नहीं की। बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन मैं इसको टाइम दूं या फिर बिजनेस को दूं? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ डन हो गया। आपने मेरी लाज रखनी है। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਰੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ बस पैसे तय कर लेते हैं, मैं आपको एडवांस दे देता हूं, बाकी पैसे काम होने के बाद। ये आपका कड़क कड़क नोट। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਘਰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ रंदा साहब लोग तो मैं बता देता हूं, लेकिन अगर काम नहीं कर पाए तो आपने इसका डबल देना है। जबान पे कायम रहना है। रंदा ਵੀਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 5 ਨਾ 5 ਵਾਪਸ साहब वीना जी गारंटी लेती हैं? मैं किस चीज की गारंटी दूं? गैर कानूनी चीजों में आप जाने वो जाने। तो फिर आप अपना टेबल हटाएं और यहाँ से जाएं। मैं सिर्फ यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के आप क्या करते हैं। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸੋ रंदा साहब बात यह है कि घर में एक ही बंदा है, ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ बहुत ढीठ है। ਉਸ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ हाँ रहता तो वो घर में अकेला है, लेकिन उसके 3 भाई ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ जेल में। आपस कर दो पैसे। ਉਹ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਕਰ 3 ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ जी जनाब, ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ कत्ल के जुर्म में। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਜਾ 3 ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਨਾ 3 भाई और हैं, वो क्या करते हैं? इश्तिहारी हैं। लो जी। ਦੇਖੋ ਵੀਨਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ और रंदा साहब आप अपनी जबान से फिर रहे हैं, जबान दिखाएं। मुझे तो लगता है आप रंदे को लूटने आए हैं। रंदा साहब आपका मुंह बता रहा है, देखिए जबान से नहीं फिरना। नहीं नहीं, मुझे तो धोखेबाज लगते हो। पहले उनको एक्सप्लेन किया नहीं, अब नई नई कहानियां सुना ਉਹ रहे हो। ਵੀਨਾ ਜੀ ਕੋ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ 3 ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 3 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀਰ ਲੱਗਣਾ ਉੱਠ ये बात ये बहादुरी पसंद आई। देखिए रंदा साहब की एक बात है, बहादुर है। ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ हाँ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ हाँ लेकिन ऐसे नहीं। इंसानियत बचानी चाहिए सुनिया और तुझे सुनिया नहीं जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत बचाई यस। इंसान नहीं मरना चाहिए इंसान को जिंदा रहना चाहिए रंदा साहब बस
आपने ये बात कह के मेरी आंखें खोल दी। शुक्र कर तेरा खुन्ना नहीं खोल देता। रंदा साहब बात करके ये मेरी आंखें खोलना एक तरफ, लेकिन 5 लाख वापस दे दें। और नहीं 5 लाख ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ को बेईमानी करनी। ए फड़ो ए तेरा 5 लाख, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज, जाओ खैर। क्योंकि रंदा साहब ये मेरी मेहनत का पैसा है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। और मैं डबल करने आया था। नहीं बीना जी, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? मैं बहक गया था, मेरा कानून पे भरोसा उठ गया था। कितना अच्छा हो कि सबके ज़मीर ऐसी बातों से जाग जाए। रंदा साहब बहुत शुक्रिया, मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। आओ ऑफिशियल तक कराਉਂਦੇ ਜਾਓ। दफा हो जाओ। खराब हो रहे हैं। रंधा साहब डर गए हो? और नहीं वो डर गया। 3 इश्तिहारी, 3 जेल च पागल होया तू। और क्या अपनी फैमिली बनाए, जिंदगी गुजारे कि ये कत्लो गारत करें। आप पता नहीं कदों ਇੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ और ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ क्या? ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਦੇਖ ਰਾਜਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਆ ਸੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਕੀ ਲਾਤਾ ਈ ਯਾਰ? ਕਲਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਚੂ ਜੀ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਉਧਰੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਈ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਮਰੇ ਕਿਤੇ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? यार राजा कपड़ा ना बन यार, क्यों? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨਾ, ਪਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ। तो बालों को कलर करके शादी कर रहे हैं आप, तो जब शादी हो जाएगी कलर कभी ना कभी तो उतर ही जाएगा ना। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਲਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅੱਜ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹਿਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਲਵਾਓ ਜੀ ਲਵਾਓ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਨਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਹਮਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੋਰਕਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਤ? ਨਾਰੋਵਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? 250। 250 ਕੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ। आपकी होने वाली बेगम कितनी उम्र की है? ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਾਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਤੂੰ ਕਲਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਸੁੱਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝੇ? ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਓਏ? विग को कलर करवाने आए हैं आप? ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਉਹ ਵਿਗ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ ਉੱਠ। ਓ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੂੰ ਨਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਫੜੇ ਨਾ। ਹਾਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ 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 ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਕਰਾਂ। ਦਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अरे तो आप कलर वाली विग ले लेते ना। ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। अगर विग लगानी थी तो ब्लैक कलर में भी मिलती है, वो ले लेते। ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। हाय अल्लाह रंधा जी, ये शोर कैसा है? आपके अब्बू जी भी आए हुए हैं। ਉਹ ਕਲਕਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਜੀ। मस्तियां में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। मस्तियां में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और रुबीना हमें सुनाएंगी आज की खबर। जी रुबीना। खबर है कि शादी की तकरीब में भांग मिला खाना खाने पर दुल्हन और केटरर को गिरफ्तार कर लिया। मतलब दुल्हन ने अपनी शादी में ही रंग में भंग डाल दिया। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ दुल्हन ने खुद किया ना। नहीं भंग खाने के बाद बंदा हंसता नहीं है, सच तो नहीं बोलता। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਈ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਪੱਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। अच्छा ये पता नहीं फ्लोरिडा में दुल्हन को क्या सूझी कि उसने अपनी शादी पर, शी इज 42 years old, और अपनी शादी पर मेहमानों को बताए बगैर उसने खाने में केटरर के साथ मिलके भंग मिला दी। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜੀ? सारी बारात तकरीबन 50 लोग। दुल्हन ने आप ही खाधी? नहीं नहीं, खुद उसने नहीं खाई, ओए होए उसने होए। मेहमानों को सर्व की। और फिर दुल्हन सारे रिश्तेदार चेक करना चाह रहे थे कि इन्हें जो अच्छा केड़ा है, कमीना केड़ा है, घटिया केड़ा है। सरदार साहब मुझे ये आ रहा है कि वहाँ पे कोई अगर छोटा सा लतीफा सुनाता होगा तो कितना बड़ा लाफ्टर आता होगा। मैं कहना कि दिल करे भी लतीफे तो बगैर लोग ही हंस रहे हो। मीनवाइल जब पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और खाने के सैंपल्स लिए गए तो बाद में पता चला कि खाने में दुल्हन ने खुद केटरर के साथ मिलके
भंग मिलाई थी जस्ट फॉर फन। एक्सक्यूज मी, क्या रे? हम वही लोग हैं जो डैमेज हुए हैं भंग की वजह से। माय स्वीट वाइफ। ओ, तो आप दूल्हा हैं और वो आपकी नोटी दुल्हन है। या Why did you do that? Just for fun? ओह वेरी गुड क्वेश्चन, बट मेरे पास अंग्रेजी घाट है, मेरी वाइफ का जवाब दे दी। उसी से तो पूछा है। ओके प्लीज। Just for the sake of fun. Yeah. तो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो now you're facing charges। अब क्या होगा? Actually, लोग जो है वो हंसना भूल गए हैं। अभी देखो ना मेरा भाई जो है वो कैसे हंस रही। डॉक्टर भी हाय। एक्चुअली तो मैं डॉक्टर क्यों हंस रहा है वैसे? डॉक्टर ने पंगदा असर हो गया है, इनू खुशबू गई है। इन्होंने केक को टेस्ट किया था। मैं खा के चेक किया जी वो मैं को तकरीबन कोई थोड़े नालों बहुता खा गया ओदा मैनू असर हो गया। टॉमी टाइप डॉक्टर है। अच्छा जी, ये डॉक्टर हैं, ये आपके हस्बैंड हैं, और पीछे दो लोग कौन है? असल में ये वही खाना खराब है जिसने केक बनाया है। ये आपकी बहन ने जो हरकत की, आपको तो बड़ी बातें सुननी पड़ी होंगी ना? बहुत टके की बातें सुनी है, इतनी गालियां पड़ी है मुझे, मैं बता नहीं सकता, बहुत मजा आया मुझे। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੜਵਈਆ ਵੇਖਣਾ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ होना। आपको क्या लगता है मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी? इसकी शक्ल देख तो मुझे ज्यादा हंसी आती है। अच्छा यानी तू पड़वैया वेख के ते भैन दे नसीबा ते खुश हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप मेहमानों से बदला ले रही थी या इस पे गुस्सा निकाल रही थी? एक्चुअली किसी ने मुझको बताया था कि ये बहुत अजीब हरकतें करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये प्लान किया था। ये सारा प्लान था मेरा। ये बुरे बुरे मुंह बनाता है, सही कह रही है, हमने इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी कराई लेकिन वो फट गई। हाँ जी, देखा ढक्कन चुक के ना सिर ते रख के कहता मैं हिटलर हाँ। ये दुल्हन का भाई इतना खुश हो रहा है, आपको पता अपनी बहन को मिलने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। कसम से सही बताए। मैं ये दुल्हन से पूछना चाहूंगा कि आपने पसंद की शादी की इनके साथ? No, I really don't like him, but now I like him. मैंने उसको शादी से पहले ना बहुत समझाया, मैंने कहा उसका मुंह देख, उसकी उम्र देख ना कर, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी नहीं मानी इसने। वैसे तो पसंद किवें है? ये भी वही दसेगा। सरदार साहब, मुझे तो लगता है ये सही फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है। मेहमानों का हाल क्या हुआ होगा शादी पे? मैं दुल्हन ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ? मैंने आपको बताया ना कि पहले ये मुझको नहीं अच्छे लगते थे, बट भंग वाला केक खाने के बाद जब इन्होंने परफॉर्म किया हॉल में, तब से मैं इनको अपना दिल दे बैठी। ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लेकिन मेरे बनाए हुए खाने, उफ मेरे खुदाया। You are going to be jailed for a very very long time, bro. जेल से डराते हो? यहाँ सब कुछ बिकता है वीना। क्या मैं पैसे दे के बाहर आ जाऊंगा। फ्लोरिडा में भी ऐसा होता है? फ्लोरिडा क्या और लाहौर क्या। ਇਹ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਨੇ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚਣੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। फिर ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ। ना तो जेल में जाएगी और ना ही वो, क्योंकि मेरे पापा बहुत अमीर हैं। हाँ, ये बात तो है वैसे। दूल्हा इतने खुश हो रहे हो, आपको पता है आपकी बीवी जेल जाने वाली है? ओह नो, जब मैं इसके हक में बयान दूंगा ये कैसे जेल जा सकती है? ये भी हो I सकता like है। you, honey. इतना नकली खानदान है हमारा, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है ये डॉक्टर साहब जानवरों का भी इलाज करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ? तो ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। अच्छा, मैं यानी कि 3 महीने जंगलों च रहना ਇੱਥੇ अस्पताल दरखास्त दे के ਜਾਂਦਾ कि मैं 3 महीने के लिए अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। और मैं जाके डड्डूआं नाल गल्लां करदा, मैं आवाज दिना, मैं जाके सीटी बजाना। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਫੌਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ। अच्छा, बड़ा ज़राफ़े ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? गैंडे का भी इलाज किया आपने? ਇਹਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾਬ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਗੈਂਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 15 दिन डॉक्टर साहब तालाब च रहे ने, मच्छियां ने एहतजाज करता, कच्छू कुमिया ने धरना देता कि तू इस तालाब चो बाहर किवें निकलना। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। क्यों?
रबट लैके ना ਉਹਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। डॉक्टर साहब आप जंगल में जाके जानवरों का इलाज करते हैं तो फीस कैसे मिलती है आपको? ਫੀਸ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆ। वीना जी एक मशवरा दूं, तमाम शादियों में भंग को आम होना चाहिए क्योंकि बहुत प्रेशर होता है लड़के वालों पे भी और लड़की वालों पे भी। एग्जैक्टली। और भंग सिर्फ ना पीने के लिए बल्कि इससे बहुत सारे फायदे भी लिए जाते हैं। भंग के धागों से तो आप तमाम बारातियों के कपड़े भी बना सकते हैं। यस, एक्चुअली ये सही कह रहे हैं। रिसेंटली फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी ने भंग के पौधे से जीन्स भी तैयार की है। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦੇ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हमारे जो साबका वो थे आईटी मिनिस्टर फवाद चौधरी, वो भी यही कह रहे थे कि भांग को जो है ना उसकी काश्त को आम कर देना चाहिए। वेल एक्चुअली असल में तो मिर्गी के जो दौरे हैं खासतौर पे बच्चों में, उनमें भंग से जो अद्वियात बनाई गई हैं उसमें 68% दौरों में कमी वाक़ई हुई है। तो दुनिया में तो भंग की बहुत ज्यादा काश्त होती है, पाकिस्तान में भी होती है जी। लेकिन कम पैमाने पर। मैंने एक वीडियो देखा कि उसमें 80 साल का बाबा था जो कि राशा के मर्ज में मुब्तला था। तो जब उन्होंने 2 पफ उसको लगवाया ना तो वो तकरीबन 8 घंटे के लिए बिल्कुल स्टेबल हो गया। यस, आई थिंक आई हैव सीन दैट वीडियो। ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी, खास तौर पे मिर्गी में। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭੰਗ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये सरकारी दौरों का इलाज नहीं है, दूसरे दौरों का इलाज है। वाह वाह। प्लीज आप सबका नजर छोटा सा लतीफा। एक आदमी चाय पी रहा था, दूसरा बातें कर रहा था। जो चाय पीने वाला था उसके हाथ से एक कप स्लिप हुआ, उसका हाथ जल गया। ਇਹ ਹਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਦਾ हाथ सड़ गया, तेनू हाथ दी पई है। लो जी, मेरे भंग का नशा खत्म हो गया। ये क्या बकवास की है आपने? मैं घर जाके आपकी तलाक करवाऊंगा। मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं रख सकता। और मैं ऐलान करता हूं कि आज से भंग वाले खाने बनाना बंद। वेलकम बैक। देखो जी, ਇਹਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कमाल है, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੰਜੋ ਦਾੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੋਦਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈ। So, bride, did you change your mind या you still love this guy? ये ढीठ है, मैं इसको बचपन से जानता हूं, नहीं मुड़ेगी ये। Honey, one more, Latifa. ओके, जब निशाई क्रिकेट खेल रहा था, एक ने शॉट लगाया, गेंद चंद चला गया। माई ने क्या अगो तो ऐसे गेंद छुटिया तो मैं तो लत पान देंगी। अगो तो ऐसा जोक सुनाया तो थोड़ी भी कोई लत पान देगा। मस्तियां में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, देती हूँ। मस्तियां में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। अच्छा, एक जमाना था कि लोग या तो मशहूर होते थे या बदनाम, मगर अब सिर्फ वायरल होते हैं। कुछ लोग वायरल होते हैं और कुछ वायरल ख्वार। तो साबित हुआ कि वायरल होने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बस जिंदगी में कोई मनहूस लम्हा आता है जब आप कुछ चीज़ शेयर कर देते हैं और उसके बाद देखते ही देखते वो वायरल हो जाती है। कोरोना के बाद एक और चीज़ वायरल हुई जिसकी अभी तक वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हुई है, और उस खतरनाक बीमारी का नाम है चाहत फतेह अली खान। इस वक्त हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं चाहत फतेह अली खान और उनके साथ 2 मजीद सिंगर्स जो कि चाहत फतेह अली खान से बहुत नाला हैं। क्यों? आइए उन्हीं से पूछते हैं। वेलकम टू मस्तियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुकाबला हो जाता है। सरगम पापा पीढ़ी ना साथ का बाद टाइम जा रहा है। वीना, आपका मैं अपने दिल से मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। बढ़िया सिंगर है, एंकर बनने का शौक भी सीगा, वो नहीं पूरा होया। मैं जब छोटा था तो मैंने गाना सुना। You were as weird as you are right now. Absolutely yes. मेरे कानों में आवाज आई, चरखे दे हर हर गेड़े, मैं माही तेनू याद करांगी। अच्छा, ये गाना आपने सुना? माही तेनू याद करांगी। ये गाना धूनी दा पहाड़ है। इसमें सुर है ना संगीत है, ना सुर है, तो ना देखो हिट है। असली मुद्दा तो गा रहे हैं, हिट नहीं। आप क्यों हिट नहीं हो सके? बदनीयत है, मैं तो सादा हूँ। मैं यकीन जाने के इतना गौर ही नहीं करता चीजों पे। उस दिन बिल्कुल से ट्रक गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। आप क्यों इतनी नाराज बैठी हैं? मैं नाराज मीणा जी इसलिए बैठी हूँ कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। मैं ना वायरल हो रही हूँ ना बदनाम हो रही हूँ। आपने भी कहा आ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਲਾ ਲਈ,
बाजा ला के हिट कराਉਂਦੇ। कैफी, you seem to be a very big fan. जी जी बिल्कुल, मैं चाहत फतेह अली खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज से नहीं, जब मैंने इनका पहला गाना आज से 2 साल 2.5 साल पहले सुना था, मैं तब से ही फैन हूँ। वो कौन सा गाना था? छाप तिलक। इनके फैन की फरमाइश है, जरा सुन ले जी। हाँ, छाप तिलक से पहले ये बताएं कि इतनी छापे पहनते हैं, इतनी अंगूठियां, क्या मसला है आपको? असल में मेरी एक अंगूठी रह गई है, जब वो मैंने पहन ली तो मेरे अंदर थानोस की तरह पावर आ गई और मैं सारी दुनिया का सुर चूस जाऊंगा। रजिया, अगर आप वायरल होना चाहती हैं तो अपनी अच्छी सी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे डाल दें, वायरल हो जाएंगी। इनका वीडियो अच्छा था जो वायरल हुआ है? हाँ, सबसे 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 अच्छा मेरा वीडियो है। आप यहाँ है, मेरा लेवल पहला बनता है। ये जगह क्यों बदली आपने? आप ही बदल रही है, आप ही रोटी पकाਉਂਦਾ, आप ही खाਂਦਾ, आप ही सौ ਜਾਂਦਾ, आप ही नहाਉਂਦਾ, आप ही सवेरे आके टली खड़काਉਂਦਾ, 12 बजे छुट्टी हो जाती, बच्चे घर चल जाते, बाहर से बूहा ला के आप ही आਉਂਦਾ, बांस फड़ के बूहे के आप ही खलोता है। इनके बारे में एक बात करूं, अगर इजाजत हो? जी करें। बगैर सिंग वाला बकरा होता है। वीना जी, आपने हमें एज ए सिंगर बुलाया ना यहाँ पे, तो हमारा कंपटीशन कराएं। आप गाना सुनाएं, वो भी सुनाएंगे। चलें जी, इनसे पहले सुने ना, ये बड़े फेमस हुए फिरते हैं। क्यों नहीं, लेकिन और पूछ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चाहत, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। ये गाना था? इन हटाया ओदी लिखी इंज है, वो इतनी बाहर निकली है। इनके बारे में दोबारा एक बात कहूँ जी। दूसरी दफा बगैर सिंग वाला बकरा होता है। हाय हाय, आपे ही गल घेर के लियाउंदा ते आपे अगे तोड़ दिंदा। बात सुनो, चलो आओ, परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। ए वीना, ए प्यारी प्यारी वीना, ए वीना प्यारी वीना प्यारी वीना। मुझे अपने प्यार होने पे शक होने लग गया है। क्या मुझे सॉन्ग सुनाने की इजाजत है? जी सुनाइए। तूने गाना जो खराब किया, वो पहले मैं तो गा लूंगा, उसके बाद तू गा लूंगी है। इनके बारे में एक और बात कहूँ, तीसरी दफा बगैर सिंग वाला बकरा होता है। तेन बकरा याद है, तेन होर कोई जानवर याद नहीं? मुझे एक ही जुगत याद है। कितना सोहना गाना गाया, इन्हें गाना खराब किया। चरखे दे हर हर गेड़े, माही मैं तेनू, माही मैं तेनू याद करा, चरखे दे हर हर गेड़े। क्या सुर लगाया है। वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके बारे में एक और बात कहूँ, चौथी दफा बगैर सिंग वाला बकरा होता है। अच्छा, किड्डे भोले हैं तुसी बीना जी, थानू भी नहीं बंदे एक बंदे की पछाण हैगी। क्यों? देखो तो किड्डी सोहनी सिंगर बैठी है, तो सुनो जरा, सुनाओ जी खान साहब। रजिया सुनाओ गाना। उस्ताद जी इजाजत है? हाँ जी, चले हो किते? आइए मेहरबान, नाच लवे मौला बह जा। जाने जा, वाह, सो स्वीट। शौक से लीजिए जी, नाच इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। इधर आ जाओ जी, तुसी बह जाओ भाजी। अरे इतने वायरल हैं इसलिए बुलाए, इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तू इन्हें कह के दिखा दे, एडा तू समझदार है, एडा तेरा दुनिया के नाम वायरल होया है। दे रे ना, दे ना, ना रे, क्या कहने। वे ना, दे रे ना। देखो ना, हुण मैं गाया, इस तो बाद मेरी शिगिर्द सुन लो, मेरे तो भी उत्ते गांधी है। यानी कि आप ये कहना एदा चाह रहे वर्ल्ड हैं? ना है, वो चुप कर जा, खड़ ला साल है। यानी कि मैं क्या 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 बेचता हूँ, ये कह रहे हैं आप? रजिया आप गाओ ना गाना। हाड़िया 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 दिल जानिया, तेनू जदों दा दिल च वसा लिया, तेरा नाम लेके मैं सालिया, तेरी सौ ढोला मर जावांगी, ओ जे तू कदरा न जानिया। हाड़िया 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 दिल जानिया। सोनी 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 सोनी।
कुछ भी हो जाए वीना जी, चाहत फतेह अली खान है वो कोई नहीं हो सकता। ਆ ਢੇਠੇ का जहाँ ही और है। ਓਏ ਕਾਕਾ ਓਏ ਅਨਕਾਲਿਆ हाँ जी। ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਈ ਚਾਹਤ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ सोनी है ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾ ਪਾੜ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ चाहत फतेह अली खान साहब, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज ये जो झंडा है सुना दीजिए प्लीज। अब वीना जी आपके सामने ऑल द वे फ्रॉम लाहौर ये जो झंडा है, ये जो प्यारा प्यारा झंडा है, म्यूजिक कम आ रहा है। ये जो प्यारा प्यारा राज दुलारा, ये जो हरा हरा सफेद सफेद, खबरदार जी बेटे फड़ी थे बेल है ही गाना तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। बस बहुत हो गया। जी जी सर प्लीज सुनाइए। ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, ਇਹ ਝੰਡਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੰਢਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲੀ ਆ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ आप सही कह रहे हैं, मगर वक्त ऐसे चेंज हो गया। आज से 8-10 साल पहले अगर आप देखें तो फेमस होने के लिए टैलेंट की जरूरत होती थी, एफर्ट की जरूरत होती थी। आप में कोई गुण कोई हुनर होता था तो आप हिट होते थे, मशहूर होते थे। मगर अभी गिवन टाइम की अगर हम एग्जांपल दें तो पीपल आर गेटिंग फेमस फॉर नो रीजन। मतलब किसी भी पैटी चीज के लिए वो मशहूर हो जाते हैं और फिर फेम भी कैसा होता है, जस्ट प्रॉब्ली 5 मिनट्स फेम और कुछ दिनों का फेम, और जितनी तेजी से वो मशहूर होते हैं उतनी तेजी से वो डिसअपेयर भी हो जाते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ अस लाइक अख्तर लावा, द पार्टी हो रही है, गंगनम स्टाइल एंड मेनी मोर। ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको बिलियंस ऑफ पीपल दे वॉच इट ऑनलाइन एंड आफ्टर फ्यू डेज पीपल फॉरगेट देम एंड मूव ऑन। और आपको याद होगा कि एक बंदा वायरल हुआ था, पीके रन मुरीद। हाँ इतना वाहियात और बेहुदा आदमी था। बुढ़िया ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ मिली है। वो गल्ला वो गलत कितना है है। आज? ये चाहत जैसी आइटम और T20 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी आते हैं 3 ओवर के लिए 5 ओवर के लिए मारते हैं चले जाते हैं, फिर उनको कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन जो क्लास है, जो ये 7 लोग बैठे हैं, इनको लोग मुत्तों याद रखते हैं। वैसे चाची आप कितना कमा लेते हैं महीने का? लातादाद पैसा अब तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता। कितना? पता नहीं। फिर आप मुझे अपनी शागिर्द कर लें, क्योंकि उस्ताद जी के साथ तो मैं कुछ भी नहीं कमा रही। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ उस्ताद जी वो अब करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖੋ उनका साफ है उस्ताद जी। बहुत अच्छे चलो घर का बेती लंका डाए उस्ताद जी सिखाएं। चलो फिर के पहली बुनियाद पे कदम रखते हैं। सा क्या हो रहा है ये? सा रे उस्ताद जी मैं बुरी लगूंगी। तो मैं कौन सा अच्छा लगता हूँ। इट्स ऑल गुड कॉन्फिडेंस। So everyone, let's take a short break here. Stay with us. मस्तियां में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद कि भूल जान सब गम दुनिया दे। ਸਦਕੇ ਵੰਜਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ जिन्हों प्यार करा जे ओ नाल होवे। मगर आज गाने के साथ साथ हमारे पास कुछ कमेंट्स भी हैं हमारे व्यूअर्स के, हमारे स्टार्स के लिए। तो क्या है कमेंट्स भाई? जी फर्स्ट कमेंट हमारे पास है रावलपिंडी से फरहान साहिब का कहना है, आपका शो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। जहां ये टीम होती है वो शो कमाल होता है। क्या करें, जो क्रीम थी ना मार्केट की वो तो सारी हमने उड़ा के अपने पास रखी। ये देखे ना क्रीम, वो क्रीम, ये ग्रीस। ये वो क्रीम्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट ना 20-20 साल हो चुकी तू है। भी चुप कर जा मुटियार सुनो क्रीम। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लोगों से पूछे, मैं तो सुनती रहती हूँ ना, दे ऑल लव नहीं यू। जाहिर मैं ये तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸ਼ਰਫ ਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੈਨ तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये टीम वाकई बड़ी अच्छी है और हम दुआगो हैं कि ये टीम इसी तरह इंटैक्ट रहे। आमीन। लेकिन बात पता क्या है, असल में ये हमारे व्यूवर्स की बड़ी मेहरबानी, उनका बड़ा प्यार है। हम रास्ते में जाते हैं तो हमें रोक रोक के तस्वीरें बनाते हैं। ये कब हुआ नहीं, आपके साथ? नहीं असल में पैसे देने होते हैं, लोग रास्ते में रोक के इनको पैसे लेते हैं और मजाक अपनी जगह। लेकिन रंगीला साहब हो गए, मिर्जा साहब हो गए, ये हमारी टीम के जी बड़े सीनियर मोस्ट और ये बहुत ही प्यारे लोग हैं जी। मेरे लिए तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद ऑल ऑफ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਰਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸੀਗੇ वो तो सच है ना। जी अगला कमेंट किसका है? जी सेकंड कमेंट हमारे पास है लाहौर से असलम साहिब का कहना है कि वीना जी आपने मरियम नवाज का एक्ट बड़ा ही कमाल किया है। एग्जैक्टली ये तो मैंने भी दाद दी। अरे वाह 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 वाह।
मैं एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट इसको बहुत अच्छी तरह बारीकी से समझ सकता हूँ। जिस तरह एक तो जैसे आप होस्टिंग करती हैं, एक्टिंग आपकी अलग चीज़ है। मिमिक्री में मैंने आपके साथ बड़ा काम किया, आपने मेरे साथ किया, और मैं सही बता सकता हूँ कि मैंने बड़ा कीनली देखा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इन्होंने किया है। और मेरी तरफ से आपको 10 में से 9 नंबर है। 1 नंबर क्यों काटा मेरा लाला? मैं नहीं था ना साथ। नहीं, आपने वीना जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो मरियम नवाज, और आपने सबसे अच्छी बात है कि आपने एक्सप्रेशन जो होल्ड किए रखा है ना, वो सबसे बड़ी बात है। असलम भाई को ये बता दे कि ये मोची दरवाजे खताब भी कर रही है थोड़े दिनों में। एक्चुअली किसी की भी अप्रिसिएशन से ज़्यादा मैं सबसे पहले अपने कलीग्स से पूछती हूँ, उनसे कमेंट्स लेती हूँ, क्योंकि दे ऑल आर पायनियर्स इन देयर फील्ड्स। और जितना अच्छा मुझे ये फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि खुद एक्टर्स को पता होता है, और ख़ासतौर पे हमारे पास जितने लोग हैं, देयर पार एट एक्सलेंस। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अरे क्लैप होनी चाहिए। वेलकम एंड यू आर डूइंग ग्रेट। जबरदस्त। और अगला कमेंट किसका है हमारे पास? हर बंदे का। यूके से अहमद साहिब का कहना है, उकाशा आप शो में अपनी आवाज़ को इतना वजनी क्यों कर लेती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऑनेस्टली जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ हमारे शो के नीचे, तो मैं देखती हूँ कि लोग जजमेंटल हैं, वो चीज़ को एंजॉय नहीं करते जो चल रही है। उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे हम हंसाने के लिए, कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। बस वो ये देखते हैं ये भारी आवाज़ में है, अबू बकर ये कर रहा है, लाला ये कर रहा है। पॉजिटिव नहीं है ये लोग। और मैं बताऊं कि हम जब एक चीज़ प्रोड्यूस कर दी, वो टीवी स्क्रीन पे आ गई, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, वो अपने एक्सपीरियंस से बैठा है, उसकी इजाज़त से वो चीज़ चली है। तो आप जजमेंटल मत हुआ करें। इतनी करोड़ों की आवाम है, हर एक को खुश करने लगेंगे तो फिर तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। कभी किसी एक्ट से कोई खुश हो जाता है और कभी किसी एक्ट से कोई खुश हो जाता है। तो आप लोग ना खुश रहा करें। भाजी इस गल तो बस ਤੁਹਾਡੀ आवाज भारी हो जानी। I hope you got your answers. Next comment please. जी, मुल्तान से नुमान साहिब का कहना है, वीना आपके शो की खबर बाकी शो में भी चल रही होती है, इसकी क्या वजह है? कोई चुगलखोर है इत्थे कोई? नहीं, चुगलखोर कौन है चुगलखोर? देखिए बात ये है, अगर रहीला साहब ने मैं 1-2 बारी होर सेट ते देखे हैं। ये जो भाई बैठे हुए ना, ये ब्लू शर्ट वाले, इनके बहुत से शागिर्द हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत से लोगों को बताया है कि बेटा खबरें कैसे निकालनी है, खबरों को कैसे लिखना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो वायरल हो ना, वो मैं ना पकड़ूं। क्योंकि वायरल अगर होगी तो वो हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जितने भी लोग मेरे जैसा, वो ऊपर वाली चीज सिर्फ पकड़ते हैं। तो क्या हम कहें कि आपका आइडिया एग्जीक्यूट होने से पहले चोरी हो जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वायरल खबर है ना, उसको मैं नहीं पकड़ता। अच्छा, और ये भी तो हो सकता है ना कि हमें लोग कॉपी कर रहे हो, हमारी खबरें चोरी करके लगा रहे हो। ये भी हो सकता है, लेकिन हम बाद में ऑन एयर करते हो, वो पहले कर। बात ये है कि अबू बकर साहब हमारे ऐसे जीनियस जो है ना रिसर्चर हैं और असातिज़ा की सीट रखते हैं, और मैंने इनके साथ 6 साल गुजारे हैं और काफ़ी सारे प्रोग्रामों में। तो आज भी इनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारी खुशकिस्मती है। और मतलब मैंने इनको जब भी देखा है, जुनून की हद तक देखा है, काम जो है ना जुनून की हद तक करते हैं। वाह वाह। इसलिए इंशाल्लाह भाई साहब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं तो यहाँ पे खबर पड़ी जाएगी, वो कहीं और पे नहीं होगा। चलो माफी मांगो तो दिल हम टूट आपको क्या कमेंट है, किसका है? ऑस्ट्रेलिया से इजवाल साहिब का कहना है, वहीद लाला आप शो में कोई नए किरदार क्यों नहीं कर रहे? नए किरदारों की जहाँ तक बात है कि किरदार तो बहुत सारे हैं, और जो पहले भी जहाँ मैंने किया है वहाँ पे डेवलप किए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो जाएं, क्योंकि मैं एक नए शो का हिस्सा हूँ। अब नए कैरेक्टर्स भी किए हैं और आप बहुत जल्द देखेंगे कि वो आपको नए कैरेक्टर जो हैं वो इस हमारे शो में नजर आएंगे इंशाल्लाह। और एक बात मैं आखिर पे कहूंगा कि भाई साहब हमें जलेबियां बनानी आती हैं, हम जलेबियां ही बनाएंगे, हम लड्डू नहीं बना सकते। बहुत अच्छे। उस ते कहंदे साडे उत्थे स्टोर हुंदा है, तुसीं जलेबी बनांदे सो? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, मिसाल दी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। मैं मिठाई जलेबी की सब्जियां जाती और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।